16 अप्रैल को असम राइफल्स पर अल्फा की ओर से हमला हुआ था। सेना पर हमला के सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें मोनांग मोसांग, मोनखुल मोसांग, जनवांग हुकुम शामिल है। आपको बता दें कि मार्गरेटा के असम अरुणाचल सीमा नामदांग में सेना पर हमला हुआ था, जिसकी जिम्मेदारी अल्फा स्वाधीन ने ली थी। गिरफ्तार तीनों लोग अरुणाचल के रहने वाले बताए जाते हैं। नामदांग में 16 अप्रैल को 2 आरपीजी, 4 ग्रेनेड गोलियों से हमला किया गया था। यहां लगभग 1.5 घंटे तक मुठभेड़ चली थी। अल्फा के हमले में ओम प्रकाश नामक सेना का जवान घायल हो गया था। वहीं तिनसुकिया में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। हम आपको सीधे लिए चलते हैं तिनसुकिया। जी ষোলো তারিখে যে ঘটনা সংঘটিত হয়েছে তারপরে তিনজনের আটক করা হচ্ছে এটা তো আপনার जुआ 16 तारीखे 16 एप्रिल 2024 আসাম রাইফল 31 ইউনিট ওপৰত এটা এম্বুশ আটেম্প্ট হৈছে আৰু এম্বুশ আটেম্প্ট হোৱাৰ পিছত লগে লগে পুলিচ ইনভেষ্টিগেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিছে আৰু আমি আৰ্মি লগত আসাম ৰাইফল লগত আমি জইণ্ট অপাৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ যিখিনি এইটো মিছক্ৰিয়েণ্ট আছে এইটো এৰেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে তো আমি কালি 24 তাৰিখে 24 এপ্ৰিলত আমি 3জন মানুহ এতিয়ালৈকে এৰেষ্ট কৰা হৈছে আৰু আমি যি তথ্য পাইছোঁ এইটো সোর্স ইনপুট আমাৰ যেছে সিক্ৰেট সোর্স আৰু টেকনিক্যাল এনালিসিস এইটো মতে যে তথ্য পাইছোঁ এইটো মতে তেখেতৰ ইনভলভমেন্ট আমি এইটো উলফা গ্ৰুপ লগত পাইছোঁ আৰু যি উলফা গ্ৰুপ এম্বুশ কৰিছে তেওঁলোকক এইটো 3জন মানুহ লজিষ্টিক্যাল সাপোর্ট কৰিছে ৰেশন প্ৰভাইড কৰিছে আৰু এম্বুশ সময়ত আৰ্মি যি কনভয় আছে এইটো মুভমেন্ট কেনেকুৱা হৈ আছে মুভমেন্ট ইনফৰমেশন দিছে আৰু এম্বুশ হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে এস্কেপ ৰুট দেখাই দিছে তো তিনিটা যি মানুহ আৰেষ্ট কৰিছে তেওঁলোকৰ মই নাম কৈ আছো প্ৰথম যি এইটো কেছ আছে মই কেছ ৰেফাৰেন্স দি আছো এইটো মাৰ্গাৰিছা পিএছ কেছ নম্বৰ 30/2024 এইটো কেছ আছে আৰু তিনিটা যি মানুহ আৰেষ্ট কৰিছে আমি নাম আছে মংখুল মোসাং মনং মোসাং আৰু জংকন হকুম আৰু তিনিটা মানুহ এইটো চাংলাং ডিস্ট্ৰিক্ট অৰুণাচল প্ৰদেশৰ হয় और তেওঁলোকক আমি ইন্ট্ৰোগেশন কৰিছো আৰু ইন্ট্ৰোগেশনত আমি কিছুমান তথ্য পাইছো প্ৰথম আমি তথ্য পাইছো এটো যি এম্বুশ হৈছে এটো এম্বুশ উলফা গ্ৰুপ মেইনলি এম্বুশ কৰিছে আৰু এম্বুশ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে এম্বুশ সাইট যে আছে এম্বুশ সাইটৰ পৰা পলায়ন কৰিছে আৰু উলফা গ্ৰুপৰ এটা ক্যাডাৰ আছে এটো এম্বুশত যি ৰিটালিয়েটৰি ফায়াৰ কৰিছে আসাম ৰাইফল এটো ফায়াৰত তেও নিউট্ৰেলাইজ হৈছে নিউট্ৰেলাইজ হোৱাৰ পিছত তেও ডেড বডি যে আছে ডেড বডি এটো যি উলফা গ্ৰুপৰ বাকি বিলাক সদস্য আছে তেওঁলোকে ফৰেষ্টত পেলাই দিছে তো এটো ডেড বডি যে আছে ডেড বডি ৰিকভাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ জয়েন্ট অপাৰেশ্যন আসাম ৰাইফল লগত আৰু অৰুণাচল পুলিচ লগত তিনচুকীয়া পুলিচৰ এটো জয়েন্ট অপাৰেশ্যন চলি আছে আৰু আজি এতিয়ালৈকে আমি যি তথ্য পাইছো তথ্য মতে আমি এটা ট্র্যাক আৰু এৰিয়া আইডেন্টিফাই কৰিছো আৰু আমাৰ যি সার্চ আছে এটো এৰিয়াত আমি কনসেন্ট্ৰেট কৰিছো আৰু আমাৰ এটো হাইয়েস্ট প্ৰায়োৰিটি আছে কি আমি যি ডেড বডি আছে এটো ডেড বডি ৰিকভাৰ কৰিবৰ কাৰণে আৰু এটো ফ্যামিলি মেম্বার যে আছে উলফা কাডাৰ এটো ফ্যামিলি মেম্বাৰক আমি এটো ডেড বডি আইডেন্টিফাই কৰি আমি হ্যান্ড ওভার কৰি দিম নেক্সট আমি তথ্য পাইছো কি এটো যি ৰিটালিয়েটৰি ফায়াৰ কৰিছে আসাম ৰাইফল এটো ফায়াৰত তিনিটা এটলিষ্ট তিনিটা মানুহ যি উলফা কাডাৰ আছে তেওঁলোকে ইনজুৰ হৈছে আৰু ইনজুৰ কাডাৰ যি আছে তেওঁলোকক যি বাকি বিলাক সদস্য আছে ইভাকুৱেট কৰি म्यांमार কেম্পত পঠাই দিছে আৰু বাকি বিলাক যি এম্বুশত ইনভলভমেন্ট যে আছে বাকি বিলাক কাডাৰ তেওঁলোকক আইডেন্টিফিকেশন আমাৰ হৈছে আমি যি তিনিটা মানুহ আৰেষ্ট কৰিছো তেওঁলোকে আইডেন্টিফাই কৰিছে আমি নাম পাই গৈছো আৰু এটো ক্ষেত্ৰত আমাৰ যি জয়েন্ট সার্চ অপাৰেশ্যন আছে এটো আমাৰ 31 আসাম ৰাইফল 23 আসাম ৰাইফল অৰুণাচল পুলিচ আৰু বাকি अन्य আৰ্মি ইউনিট যি তিনচুকীয়াত পোস্টেড আছে তেওঁলোকৰ লৈ আমাৰ এটো জয়েন্ট সার্চ অভিযান চলি আছে सर ये बता सकते हैं कि अचानक से इस तरह का जो भारतीय सेना को उन्होंने अटैक किया क्या वो ऐसा माना जाए कि उल्फा की गतिविधियां फिर से तेज हुई है सीमांतवर्ती अंचल में? नहीं मैं इसके बारे में बोलना चाहूँगा कि उल्फा की शक्ति जो अभी काफ़ी कम हो गई है तो अपना अस्तित्व दिखाने के लिए बार बार ऐसे अटेम्प्ट ले रहे हैं और ये भी अटेम्प्ट हम देखेंगे तो ये भी फेल्ड ही अटेम्प्ट है जो उन्होंने अटैक किया उसमें ज़्यादा नुकसान जो आर्मी यूनिट है असम राइफल यूनिट है उसका नहीं हुआ है उल्टा उल्फा की क्षति हुई है इससे हमको पता चल जाता है कि उल्फा की ताकत छीन हुई है और उल्फा की गतिविधियां अभी बढ़ी है ऐसा नहीं है बीच बीच में ये लोग छोटा मोटा ऐसा अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं हमने अगर पैटर्न देखा जाए तो
तो हर 2-3 महीने में ये कुछ ना कुछ ऐसा छोटा मोटा गतिविधियां करने की कोशिश करते हैं, जो कि काफी हद तक हम उनको नाकाम कर चुके हैं। लेकिन कुछ गतिविधियों में सक्सेस भी हुए, तो भी हमने उसको ट्रैक किया है, और उसमें से जो कल्प्रिट है, अभी तक तो हमने 3 आइडेंटिफाई करके अरेस्ट किए हैं। बाकी लोग भी आइडेंटिफाई, उनको भी हम जल्द उनके ऊपर लीगल कार्रवाई हो जाएगी। जैसा आपने कहा सर, जिस तरह से अल्फा के बीच में गतिविधियां बढ़ती है, तो सीमांतवर्ती इलाके और अंदरूनी जो इलाके हैं और जो सीमा से सटे हुए इलाके हैं, उन इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था के किस तरह से इंतजाम है और पुलिस किस तरह से वहां पे अपनी मुस्तैदी बनाए रखी है और किस तरह से जांच पड़ताल कर रही है पूरे अंचल को सर? अगर हम तिनसुकिया जिले की बात करें, तो तिनसुकिया जिले में जो सीमावर्ती भाग है, जो अरुणाचल के बॉर्डरिंग है, वहाँ पे थोड़ा सा टेरेन जो है हिली टेरेन होने की वजह से, फॉरेस्ट कवर ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे उल्फा को ज़्यादा छुपने का जगह मिलता है, और थोड़ा सा वहाँ पे मूवमेंट उनका रहता है। लेकिन वो अभी जो पैटर्न हमने 1 साल का देखा है कि उनका गतिविधि उसी एरिया में सीमित है। तो हमारे जो ऑपरेशन से हम ज़्यादा, हमारा फोकस उसी एरिया में रहता है, और बाकी डिस्ट्रिक्ट के एरिया है वहाँ पे भी हमारा नाका चेकिंग और जो भी है जॉइंट हमारा आर्मी के साथ सर्च ऑपरेशन, पेट्रोलिंग ऑपरेशन, ये सारा हमारा चलता रहता है। हमारे पास आसाम पुलिस कमांडो एक वेल ट्रेन फोर्स है, जो इसी काम के लिए बनाया है, जिनकी संख्या हमारे डिस्ट्रिक्ट में 275 है। तो उनको लेके हमारा निरंतर ऑपरेशन और एडेड डोमिनेशन चलता रहता है। और आर्मी की यहाँ पे 3 यूनिट है, जो तिनसुकिया एरिया में उनका जुरिडिक्शन है, और उनका जुरिडिक्शन तिनसुकिया के बाहर भी है। उनके साथ लेके भी हमारा ऑपरेशन चलता रहता है। और सीआरपीएफ की भी एक स्पेशल ट्रेंड यूनिट है यहाँ पे, उनको लेके भी हम ऑपरेशन करते रहते हैं। तो हमारा ये प्रयास रहता है कि सारे एरिया जो है हम कवर करें, और कहीं पे भी उल्फा को हाइड आउट ना मिले, कहीं पे भी उनको रुकने का जगह ना मिले। और उसके साथ साथ ही हमारी इंटेलिजेंस मशीनरी है, वो भी स्ट्रांग है। हम कहीं से भी कोई इंटेलिजेंस आता है तो उस पर वो तुरंत कार्रवाई करते हैं। और दूसरा एक बात हमको एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है पिछले कई दिन में, कि लोगों को कहीं पे भी ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलता है, लोगों में कहीं पे भी ऐसा कोई मूवमेंट का खबर मिलता है, या किसी को कोई थ्रेट आता है, तो तुरंत वो पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। और सारा इन्फॉर्मेशन पे हमारे जो सारे ऑफिसर है वो सब मिलके इस पे कार्रवाई करते हैं। तो अभी के लिए हम बोल सकते हैं कि एरिया सुरक्षित है, और जो भी गतिविधियां आगे करने की कोशिश करेंगे, हमको विश्वास है कि हम इनको नाकाम कर देंगे। এম্বুশ যি হৈছে, আমি যে ইনফৰমেশ্যন পাইছোঁ, এইটো উলফা গ্ৰুপ আছে মেইনলি, আৰু কিছুমান মানুহ ছাছপেক্টেড NSCN কাৰ্ডত তেওঁলোকক হেল্প কৰিছে, আৰু লোকেল মানুহ হেল্প কৰিছে। আৰু এম্বুছৰ দল যি আছে, এইটো সংখ্যা around 15 মানুহ আছে, আৰু 15 মানুহ যে এম্বুছ হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে স্কেটাৰ হৈ গ'ল, তেওঁলোকে সৰু সৰু গ্ৰুপ বনাই। কিন্তু আমি ভাবি আছোঁ কিছুমান মানুহ ম্যানমাৰ কেম্পৰ ফালে গৈছে, আৰু কিছুমান মানুহ অৰুণাচল বা বৰ্ডাৰিং এৰিয়াত এতিয়া আছে, তাতে কিবা কেম্প চেম্প বনাই, এইটো হাইড আউট বনাই থাকি আছে। তো এইটো ক্ষেত্ৰত আমাৰ যি আছে, এইটো অভিযান আমাৰ আৰ্মিৰ লগত চলি আছে।